سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد نے مانچسٹر کا دورہ کیا، جہاں پر مانچسٹر آمد پر مسلم کانفرنس برطانیہ کے سابق صدر محمد بشیر رٹوی کی عیادت کی۔ مزید احوال اعتزاز اسم کی رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے سابق مرکزی صدر محمد بشیر رٹوی کی عیادت کی، جنہیں چند روز قبل ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں سردار عتیق احمد کا کہنا تھا کشمیر پر گفتگو ایک تاریخ ساز کامیابی ہے۔ دیکھیے، مسئلہ کشمیر پر بڑی دیر سے ایک جمود کی کیفیت تھی۔ عمران خان کے دورہ امریکہ کے بعد خاص طور پر امریکی صدر کا بات کرنا اور امریکی صدر کا یہ کہنا کہ وہ ہندوستان کے وزیر اعظم کی خواہش کی بنیاد پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ دوہری بات ہے۔ اس لیے مسئلہ کشمیر پر برف پگھلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جمود ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایک پیش رفت کی امید ہو چلی ہے، اور اب امید کی جا سکتی ہے کہ اگر ہندوستان کے وزیر اعظم نے خواہش کا اظہار کیا ہے، جو بڑی بات کی ہے انہوں نے، اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس بات میں پھر امریکہ کے وزیر اعظم بھی شامل، امریکہ کے صدر بھی شامل ہو گئے، پھر ابھی چین نے بھی اس کی تائید میں بیان دے دیا ہے، ایک اور دنیا کی بڑی اکنامک سپر پاور بیچ میں آ گئی ہے۔ اسی طرح اس دورے کے دوران امریکہ کے جو فوجی ہیڈ کوارٹر ہے اس میں پاکستان کے ملٹری چیف کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ تو یہ ساری باتیں ان کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے دیکھا جانا چاہیے۔ سی پیک بھی بیچ میں موجود ہے، اور میرا یقین ہے کہ اب چائنا کے بعد رشینز بھی اس پر اپنا موقف کا اظہار کریں گے، اور روسی صدر کی دعوت وزیر اعظم پاکستان کو موجود ہے، وہ وہاں جائیں گے تو اس پر بات کریں گے۔ اور خود حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اب اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو، سفارتی کوششوں کو، لابی کو تیز کرے۔ اس موقع پر بشیر رٹوی نے عیادت کرنے پر سردار عتیق احمد کا شکریہ ادا کیا۔ سابق وزیر اعظم ریاست جموں کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب کا اپنے دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور میری بیمار پرسی کی۔ یہ کارکنوں کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور کارکنوں کے لیے حوصلہ بڑھتا ہے، جس پر میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ انہوں نے پاکستان سے فون کر بھی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ یہ ہماری جماعت کی خوش قسمتی سمجھی، اور قائدین کا ہم اچھی بات ہے کہ وہ ہمیشہ کارکنوں کے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم کانفرنس کی قیادت کی ہمیشہ یہ روایات رہی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کارکنوں کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں دل جان فاؤنڈیشن کی جانب سے چیریٹی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر حکمان امام خان تھے۔ تقریب کی تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ ساؤتھ ہال میں فلاحی تنظیم کی جانب سے چیریٹی کی تقریب میں سابق صدر UK PCCI حاجی صدیق، قاضی فضل علی، محمد مظہر، انیل آبٹ، علی طارق ملک اور عاصم خان سمیت دیگر شریک ہوئے۔ دل جان فاؤنڈیشن کی جانب سے مفت ہسپتال میں میڈیکل کیمپ اور فری ایمبولینس، بیواؤں اور یتیموں کی مالی امداد، اپاہج اور معذور افراد کے لیے ویل چیئرز کی فراہمی، غریب اور ہونہار طلباء و طالبات کے لیے وظائف دیے جاتے ہیں، جس پر مبنی شارٹ ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے دل جان اور زاہد عباس نوری نے کہا کہ بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کی مدد اوورسیز پاکستانیوں کی امداد سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ آج کا جو یہاں ساؤتھ ہال میں فنڈ ریزنگ ایونٹ ہو رہا ہے، یہ دل جان فاؤنڈیشن ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ پاکستان سے آئے ہیں ایک بڑی امید کے ساتھ کہ جو ہمارے UK میں رہنے والے جو مسلمان بہن بھائی ہیں بڑے جنرس ہیں، اور کمیونٹی کو ہمیشہ پاکستانی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی انسانی خدمت ہے۔ آج ہم سارے یہاں پہ گیدر ہوئے ہیں دل جان فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جو دل جان خان صاحب نے آج سے 3 سال پہلے پاکستان میں اس کو
उसको बनाया। और ये खैबर पख्तूनख्वा के वो सारे रिमोट इलाके जहाँ पे लोगों की हॉस्पिटल्स तक रसाई नहीं है, वहाँ पे फ्री हॉस्पिटल, फ्री मेडिकल कैंप्स, और जो बेवाएँ हैं जिनके पास बच्चों को फीड करने के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको वहाँ पे इस किस्म की सहूलियात ये देते हैं। तो प्लीज़ सारे आप दिलजान फाउंडेशन को पाकिस्तान में भी सपोर्ट करें और ओवरसीज़ कम्युनिटी से भी कहूँगा कि इसको सपोर्ट करें। बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है दिलजान फाउंडेशन ने। दे आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क इन पाकिस्तान, very great souls, a registered charity. Hospitals, free medical camps लगा रहे हैं, and the staff they have is professional. और we were so pleased to being with them and to do whatever we can in our capacity. And the message is that organizations like that and the people who are behind them, we must support them at all times. Pakistan needs good people like these, and it's time for us to extend our support. इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर ममालिक के लोग शरीक हुए। शुरका ने दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए दिलजान फाउंडेशन की काविश को सराहा। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम एक चैरिटी इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसका अहवाल बता रही हैं खालिद परवेज़ अपनी इस रिपोर्ट में। एडिनबरा में यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रंगारंग इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कॉटलैंड भर से मर्दो खवातीन ने शिरकत की। इस मौका पर बच्चों के लिए खास इंतजामात किए गए थे। इवेंट में खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां लोगों का खूब रश देखने में आया। लोगों ने कहा कि इस किस्म के इवेंट्स से एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक फेस्टिवल है चैरिटी का, और ये जो है मेरे ये दो दोस्त हैं, इन्होंने मुझे बुलाया है इटली से, और मैं स्पेशली इनके पास आया था इस इवेंट पर। और आप सब भी आए नेक्स्ट टाइम। एवरी ईयर हम लोग यहाँ पर ये फेस्टिवल करते हैं। Thank you to 92 News for coming down to our event today. We had a supercar barbecue. It was a charity event. You know, we have our group called Unity, which is a youth organisation. We just organise events in the Edinburgh local community. Today was for underprivileged kids, and all the proceeds are going to go to local projects. We hope you all enjoyed the event. हमने फंक्शन अरेंज किया है चैरिटी के लिहाज से। यहाँ पे हर साल यहाँ पे करवाया जाता है, ताकि डिफरेंट चैरिटीज़ हैं जो मिलके फंक्शन कम्युनिटी के लिए अरेंज करते हैं, जो फ़लस्तीन की कॉज के लिए, नेपाल में है, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मुख्तलिफ चैरिटीज़ ने मिल के अरेंज किया है, ताकि कम्युनिटी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हों, कम्युनिटी की गैदरिंग भी हो जाती है, एक दूसरे की वो मिलने का मौका भी मिलता है, कम्युनिटी की गैदरिंग होती है, और साथ ही साथ चैरिटी की हेल्प भी हो जाती है। ये फंक्शन यहाँ पे हर साल करवाए जाते हैं, और इससे लोगों को मौका मिलता है चैरिटीज़ के बारे में जानने का, लोगों को मौका मिलता है उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जानने का जो मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए काम कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा था, especially yeah, today is so nice, and there's a festival and they show so many cars and it's so nice, and the food here is so good. It's so nice. I like these cars, like so good, and it's so today like so fun, and the fun was good. This is so fun because you can get candy floss. मुझे मजा आ रहा है, मुझे गाड़ियाँ मज़े की लगती है। चेयरमैन इवेंट ऑर्गेनाइजेशन मूसा रजा का कहना था कि यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश नौजवानों ने 3 साल पहले बनाई थी, जिसमें तकरीबन तमाम मुस्लिम मुल्कों के अफराद शामिल हैं। चंदा इकट्ठा करके कश्मीर और फलस्तीन पर खर्च किया जाता है। आज हमारे शुरू किया हुआ हमने सुपर कार चैरिटी बारबेक्यू हमने किया है। तो ये चैरिटी हमारी जो है यूनिटी, इसमें मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं सब। तो हम नाम यूनिटी हमने इसलिए रखे क्योंकि मैं जो पाकिस्तानी हेरिटेज है, मेरे दोस्त जो इंडियन हेरिटेज के हैं, बंगाली हेरिटेज, फ़लस्तीन के, और हम सब यहाँ के पैदाइश स्कॉटिश हैं। तो इसलिए हमारा जो लोगो है वो सिर्फ उसको सोच के, उसके एहसास के हमने रखा हुआ है। तो ये हमने 3 साल पहले हमने शुरू किया। तो हम हमेशा हर साल हम इफ्तारी पार्टी रखते हैं। तो वो उस पैसों के साथ पिछले साल हमने रोहिंग्या मुसलमान में जो बांग्लादेश में हैं उनकी हमने सपोर्ट की है। इस साल फिर हमने उनको फूड पैकेजेस दिए हैं। और यहाँ फिर हम ये कोशिश करते हैं कि जो मुसलमानों की तरफ काफ़ी लोगों की गलत सोच है कि ये ख़ुद की कम्युनिटी के लिए कुछ करते नहीं है, गोरे की कम्युनिटी कुछ करते नहीं है, हमने इस साल फिर जो ये इलाका है, हमने इस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं उनको इनवाइट किया कि हमारे साथ घुल मिले, बातें करें, हमारा इवेंट खुद इंजॉय करें। फरारी गैरेज, लैम्बोर्गिनी गैरेज, सब गाड़ियाँ आई हैं। हमने सुपर कार बारबेक्यू रखी हुई है। काफ़ी लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, बच्चे के लिए हमारे की है। आप लोगों की दुआएं से, अल्लाह के फजल से हम करते हैं।
तो बस हमेशा दुआ में याद रखो और हम यही चाहते हैं कि टुगेदर वी मेक इट। इवेंट के आखिर में इनामात भी तकसीम किए गए। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फातेह टीम के पाकिस्तानी नियात खिलाड़ी आदिल रशीद ने अपने मद्दाहों से मिलने के लिए ब्रेडफोर्ड की मस्जिद उमर में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें इलाके भर से हर उम्र के अफराद ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वक़ार बाबर की रिपोर्ट में। क्रिकेट वर्ल्ड कप की फातेह टीम के पाकिस्तानी नायाद खिलाड़ी आदिल रशीद, जिनका ताल्लुक बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड से है, उन्होंने अपने मद्दाहों से मिलने के लिए मकामी मस्जिद उमर में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें इलाका भर से हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने आदिल रशीद से मुख्तलिफ सवालात भी किए। आदिल रशीद बच्चों के साथ घुल मिल गए और खूब सेल्फियां बनाई गयी। शुरका का कहना था कि आदिल रशीद इसी इलाके में पले बड़े, यही वजह है कि लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आदिल रशीद जैसे नौजवान हमारी नई नस्ल के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं और आज की ये तकरीब भी नौजवानों और बच्चों के लिए खसूसी तौर पर मुनक्किद की गई थी, ताकि दीगर बच्चे भी इसी राह पर चलें और अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। I first started playing when I was 8-9 years old. My dad got me into it at a young age. He really dedicated all his life for me playing cricket. But I remember going to the local park, going to the local cricket ground, playing cricket there with my dad and also my brothers. So my dad put a lot of effort in at the age of 8, 9, 10, 11, all the way up until the age of 18. That's all the age groups. My dad really put a lot of effort in, and that's the ages where that's where a lot of time was spent and hard work, and alhamdulillah a lot of things have paid off. ये तरबियत होती है माँ बाप की, किस तरफ आप लेके जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह घराना दीनदार था, तो दीन की निस्बत से मैंने कहा कि सबसे पहले दीन है, उसके बाद तालीम है, दुनियावी स्पोर्ट उसके बाद है। तो तीनों पे मेहनत की इंशाअल्लाह, पर अल्लाह ताला का देन है, अल्लाह ताला ने दिया तो वो चल रहा है ऐसे। Alhamdulillah, we had this gathering today here at Masjid Umar. The purpose of the gathering was that our youngsters, they have a role model to look up to, mashallah, who grew up in this area, who's from this area, who prays namaz at the local masjid. So mashallah, the kids were inspired, and the whole purpose is that it's a message that alhamdulillah we're Muslim. As a Muslim, first and foremost we should be proud, and second of all that we should contribute to society. इंग्लैंड के क्रिकेटर आदिल रशीद को यहाँ बुलाए और इसका मकसद यही था कि जो हमारे नौजवान इस इलाके में, गर्लिंगटन के इलाके में जो बड़े हो रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा रोल मॉडल हो ताकि वो फ्यूचर में वो भी कोई ऐसा नाम कहाँ पैदा कर सके। बड़े अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान है, अल्लाह ताला ने उसको जो है नवाजा और अल्लाह ताला ने उनको फ़तह दी, कामयाबी दी। हम सबको खुशी है एज़ अ मुसलमान भी और एज़ अ ह्यूमन भी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने सोसाइटी वालों के साथ, लोगों के साथ इस तरह रह रहे हैं। We are all proud of Adil Rashid. He's made us all proud and he's made my dream come true. शुरका का कहना था कि आदिल रशीद जैसे खिलाड़ी पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। इटली में जश्न पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से यूरोप का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मेला सजाया गया, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल के मैचेस रखे गए थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इटली के शहर ब्रेशिया में 2 रोजा जश्न आज़ादी मुबारक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी थे। इवेंट में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल के मैचेस रखे गए थे। इस मौके पर फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी ने अपने खिताब में मेले की कामयाबी पर ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम जो है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आगे जाएगा। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ द मीडिया पर्सन्स। और आखिर में इतना जोरदार नारा हो कि इस्लामाबाद तक आवाज जाए, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौंसलर जनरल मिलान डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी का कहना था कि कम्युनिटी का इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होना काबिल तहसीन है। मैं यहाँ पे जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई,
पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि एक नहायत उम्दा ये जो है मेले का बंदोबस्त किया गया है। इससे जो है हमारे नौजवान उनको मुस्बत सरगर्मियाँ करने को मिल रही हैं। मैं 8 दिनों में दूसरी दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, ये दूसरा स्पोर्ट्स मेला है और मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के मेले ठेले जो हैं वो लगे रहें। हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो भाई हैं, बच्चे हैं, इसी तरह से खुश खुरम रहें, इसी तरह से तरक्की करें। मैं अज दे इस शानदार फेस्टिवल दी बहुत कामयाब मुबारकबाद देना अपनी पूरी टीम पाकिस्तान स्पोर्ट क्लब ब्रेशियन के और पाकिस्तानी कम्युनिटी ब्रेशियन और इटली न कि जिन्होंने इस कामयाब किया है इस फेस्टिवल नो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही फेस्टिवल को इनकाद करेंगे। मैं खसूसी तौर पर जितनी भी इंतज़ामिया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही आला किस्म का उन्होंने मेला अरेंज किया है और बड़ी दूर दराज एरियों से लोग इधर आए हैं इनको एंजॉय करने के लिए। इधर आकर ऐसे लगा जैसे हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान वाला माहौल और पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू इधर हमें महसूस हुई है। मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी इटली ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ है। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर टीमों और खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 9 न्यूज़ यूके।